Hello everyone, myself Dr. Rajiv Kumar, Assistant Professor at Institute of Management Studies, BHU, welcome you all to this lecture 4, week 4 on the course name Rural Marketing Principles, Strategies and Practices. Today in this lecture, we are going to discuss about how we are going to design this instrument so that it is going to collect the data, or we can say that we are going to talk about this questionnaire design. So after this lecture, one will able to understand what are the steps or what are the different process should be undertaken by this marketer or the learners to design this questionnaire, which is an important tool for data collection. So before moving ahead, I just give you a brief about what we discussed in this previous, you can say that lecture. So we talked about how we are going to frame this research problem, what is the process of this, you can say the research design. There are 3 types of research design. How we are going to define this sample from the population, that is leading to the sample design, what are the different type of sample design. So after this, when we decided our respondent, the next step coming is this: what are the tools that we are going to undertake while going for this data collection. So for this, we are going to discuss in this class regarding this questionnaire. The questionnaire, what is the questionnaire? Questionnaire is nothing, it is a research instrument consisting of series of questions. एक क्वेश्चनर होता है. अब आप देखिए, हम इस सोसाइटी में, इस मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्वालिटेटिव भी होती है, वो क्वांटिटेटिव भी होती है. क्वालिटेटिव उसे कहते हैं जिसमें हम डेटा इन्वॉल्व नहीं करते. जैसे हम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी का बिहेवियर मुझे ऑब्जर्व करना है, तो मैं कहीं एक जगह बैठ गया और देख रहा हूं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है. और दूसरी बात, किसी को हम उस ऑब्जर्वेशन को हमको क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करना है, हमको किसी परसेप्शन को या किसी एटीट्यूड को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ टूल बनाना पड़ेगा. वो टूल होता है क्वेश्चनर. तो क्वेश्चनर कुछ नहीं है, वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जो कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रखता है, जो कि डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है. इसे सर फ्रांसिस गैल्टन ने कॉइन किया था और इट इज जनरली यूज्ड टू कलेक्ट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एंड इट इज जनरली यूज्ड इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. So generally, when we are going for this survey, when we are going for this, you can say that one-to-one personal interview, online interview, so this type of tools can be used. So what should be the characteristic of good questionnaire? अब questionnaire का characteristic क्या होना चाहिए कि आप कहेंगे कि वो हमारा डेटा जो है अच्छे से कलेक्ट करे और हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो मिल जाए मुझे. तो it should be very specific and relevant on the topic. It should be short. Direction of wordings should be clear and simple. Embarrassing questions, presuming questions, hypothetical questions should be avoided. Presented in good order, attractive, neat and printed and clearly arranged. अगर आप देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिसे एक रिसर्चर या मार्केटर को सोचना चाहिए while designing the questionnaire. We will go one by one. तो पहला चीज है concerned with specific relevant topic. अब आप किसी पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई टॉपिक जरूर होगा. तो अब मैं समझिए, अगर मैं यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड शुड बी ड्राफ्टेड. फॉर एग्जांपल से, इफ आई एम डूइंग रिसर्च ऑन द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, तो मेरा क्या टॉपिक हुआ? समथिंग विद द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. एज वी आर डिस्कसिंग इन दिस रूरल कॉन्टेक्स्ट, सो आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल इन दिस रूरल कॉन्टेक्स्ट ओनली. तो हम ये देख रहे हैं कि यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का क्या रोल है. तो यू कांट आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस स्मार्टफोन ब्रांड्स बिकॉज योर टॉपिक इज समथिंग रिलेटेड विथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एंड इफ यू आस्क समथिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फोन और एनी अदर, तो दैट इज नॉट रिलेवेंट. तो इसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आपको वही क्वेश्चन पूछें जो आपके टॉपिक से संबंधित हो. दूसरा है शॉर्ट. देखिए, सभी के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता. रिसर्चर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. मे बी आपको 2 महीने में रिसर्च करना है, मे बी आपको 6 महीने में रिसर्च करना है, मे बी आपको साल में, मे बी आपको 10 साल में. तो जैसा टाइम फ्रेम होगा वैसी आपकी
क्वेश्चनर की डिजाइनिंग होगी। तो इट शुड बी शॉर्ट इसलिए क्योंकि किसी भी रिस्पोंडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको पूरी तरह बता सके। तो जितना कम वर्ड्स में आप बता सकते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो लिमिट योर क्वेश्चन टू द 10 to 15 रेलिवेंट क्वेश्चंस अबाउट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मैंने क्या बोला था, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात बोल रहा हूं, इनकम, देयर चैलेंजेस, सो इट कैन बी कंप्लीटेड विद इन 10 to 15 मिनट्स। तो ये शॉर्ट भी होना चाहिए और डायरेक्शन एंड वर्डिंग शुड बी सिंपल एंड क्लियर, बहुत सिंपल, जो दूसरे को रिस्पोंडेंट को देखिए। रिस्पोंडेंट अगर एक किसान है, ये भी डिपेंड करता है कि हमारा रिस्पोंडेंट कितना पढ़ा लिखा है। किसान को देखना पड़ेगा कितना पढ़ा लिखा है, उसको क्या समझ में आएगा, उसको उनकी लैंग्वेज में ही क्वेश्चनर बना के देना पड़ेगा। अगर वो आप किसी साइंटिस्ट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, द वे ऑफ क्वेश्चनर विल बी डिफरेंट। इफ यू आर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द मार्जिनल फार्मर्स, द वे ऑफ क्वेश्चनर विल बी डिफरेंट। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज परसेप्शन अबाउट एग्री इनपुट सब्सिडाइजेशन, अगर आप ये किसी छोटे किसान से पूछें, वो नहीं बता पाएगा सब्सिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। उसको आपको समझाना पड़ेगा कि क्या आपको कोई डिस्काउंट मिलता है, क्या छूट मिलती है, कोई सब्सिडी मिलती है आपको सीड खरीदने में सरकार की तरफ से। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये आपके रिस्पोंडेंट पे डिपेंड करेगा कि आपकी क्वेश्चनर की वर्डिंग कैसी होनी चाहिए, बट इट शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लियर। आपको रिसर्चर को एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन, प्रिजमिंग क्वेश्चन एंड हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। क्या होते हैं, क्या एम्ब्रेसिंग क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिस्पोंडेंट को एम्बेरस कर सकते हैं। हाउ मच यू अर्न एवरी मंथ, आप किसी से भी पूछिए, कोई नहीं बताएगा। आप ये पूछेंगे कि कितनी सैलरी पाते हो, वो झिझक जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि उसकी सैलरी कितनी है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं पूछने चाहिए। कुछ प्रिज्यूमिंग क्वेश्चन जो पहले से ही उनको पता हो कि इसका आंसर यही होगा। सिंस यू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, डू यू फेस हेल्थ इशू, ये सभी को पता है कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर, हार्मफुल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो ये हेल्थ इश्यूज आनी ही है। तो ये एक प्रिज्यूमिंग क्वेश्चन है कि उसको पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका नहीं, इस तरह नहीं पूछना चाहिए। और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। इफ गवर्नमेंट गेव यू 50,000 व्हाट वुड यू डू, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछने चाहिए क्योंकि वो उससे रिस्पोंडेंट और हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपको अवॉइड करना चाहिए। और इसकी जगह आप पूछ सकते हैं, डू यू फाइंड इट इजी और डिफिकल्ट टू मूव टुवर्ड फार्मिंग एक्सपीरियंस। सोचिए, वो कहीं ना कहीं आप उसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से। क्या आप कहीं ये इजी पाते हैं या डिफिकल्ट पाते हैं अपने फार्मिंग एक्सपीरियंस को पूरा करने के लिए? वो बोलेगा कि यस, नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये उसमें इजी दे सकता है। व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर डू यू यूज रेगुलरली, तो ये बताएगा। केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स, कई तरह के हो सकती है। तो ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। इट शुड बी प्रेजेंटेड इन गुड ऑर्डर। देखिए, एक हम लोग इंटरव्यू में एक टेक्निक होती है, मैंने एक यहां आपको फिगर दिखाया है, इसे कहते हैं फनल टेक्निक। एक ये सुराही टाइप की दिखेगी है। तो इंटरव्यूअर को या लर्नर को समझने की जरूरत है, जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो ये फनल टेक्निक यूज करते हैं। फनल टेक्निक अगर आप देखिए, ये कैसा है, ये ऐसा है, ऊपर से ब्रॉड है, फिर जैसे नीचे आते जा रहा है वो नैरो होते जा रहा है। तो क्वेश्चनर भी जब हम डिजाइन करते हैं तो इसी टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्रॉड क्वेश्चन होने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, फिर थोड़े से ओपन एंडेड फॉलो अप क्वेश्चंस होने चाहिए, ओपन एंडेड फॉलो अप क्वेश्चंस, फिर क्लोज एंडेड। तो थोड़ा सा पहले से आप उनको पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी किस संस्था में काम करते हैं, आपको कितने साल एक्सपीरियंस हो गए किसानी करते हुए, आपकी कितनी इनकम है, जो बताएगा वो कितना कमा लेते हैं एक साल में, आपके परिवार में कितने लोग हैं, ये क्या है, ये ओपन क्वेश्चन है। आप उसको पहले ओपन क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ डाइकोटोमस क्वेश्चंस होते हैं। डाइकोटोमस क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसके दो रिस्पॉन्स होते हैं केवल, यस। आप इसके बारे में जानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानते हैं, वो कहेगा हां या ना। तो जिसके दो रिस्पॉन्स होते हैं उसे कहते हैं हम डाइकोटोमस क्वेश्चंस। और जब हम जैसे नीचे नीचे क्वेश्चन जब बढ़ते जाते हैं तो हम फिर स्पेसिफिक होते जाते हैं कि जैसे मैंने कहा, क्या आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उस किसान से, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो आप क्या हो रहे हैं, अभी नैरो डाउन होते जा रहे हैं। ओपन पहले थे, फिर ये नैरो डाउन होते जा रहे हैं। तो ये इस टेक्निक को हम लोग जनरली कहते हैं
फनलिंग टेक्निक। ये फनल टेक्निक खान और कैनल ने डिफाइन किया था। इट इज यूज्ड टू क्वेश्चन टू गाइड रिस्पोंडेंट फ्रॉम ब्रॉड जनरल क्वेश्चन टू मोर स्पेसिफिक। ब्रॉड से हम स्पेसिफिक की तरह आते हैं। तो स्टार्ट विद द ब्रॉड क्वेश्चंस। कैन यू टेल मी अबाउट योर जनरल शॉपिंग हैबिट। देखिए ये ब्रॉड क्वेश्चन है, आप अपनी जनरल हैबिट के बारे में बताइए, क्या कैसे आप शॉपिंग करते हैं। ये ओपन क्वेश्चंस है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस जैसे जाएंगे, हाउ ऑफन। अब देखिए कितनी बार आप ग्रोसरीज ऑनलाइन करते हैं, तो मैंने पूछा कि आपकी अपनी शॉपिंग हैबिट बताइए, फिर बोले कितनी बार आप दिन में करते हैं, कितना टाइम देते हैं। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते जाते हैं। तो ये फिर आप पूछते हैं डिटेल क्वेश्चंस। अब डिटेल क्वेश्चंस अब आप पूछे कि व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस योर डिसीजन टू चूज वन ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर ओवर अदर्स। अब आप और स्पेसिफिक हो गए, उनसे पूछे कि जब आप ऑनलाइन स्टोर या शॉपिंग चूज करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर आप देखते हैं एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड। तो कहां आपने पूछा कि पहले आप मुझे अपनी ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट के बारे में बताइए और कितनी बार करते हैं, फिर और नैरो डाउन हुए, फिर और आप स्पेसिफिक होते जाए। तो ये इसको फनली टेक्निक कहते हैं। और इट शुड बी अट्रैक्टिव, नीटली प्रिंटेड। तो ये चीज जो है, आप जब क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो आप उसको नीटली प्रिंटेड होना चाहिए और सारे वर्ड्स दिखने चाहिए। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिस्पोंडेंट तय करेगा, आपका यह समझ में आएगा कि आपकी क्वेश्चन किस लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर आप किसान है और वो कहीं बिहार के छोटे से गांव में रहता है, तो वहां पे आपको इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। आपको उनकी लैंग्वेज में, चाहे वो भोजपुरी है, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो किसी और भी लैंग्वेज का हो, तो उसी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि उससे रिस्पोंडेंट को अपना डेटा देने में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनर डिजाइनिंग। अब देखिए प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनर डिजाइनिंग में क्या है। क्वेश्चनर जब डिजाइन करेंगे तो एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है। जब ये प्रोसेस पूरा करेंगे तब आप एक अच्छा क्वेश्चनर बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चनर जब अच्छा ही बनेगा तभी जाकर डेटा भी आपका सही तरीके से कलेक्ट होगा और उसको अच्छे से आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू से जज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अब ये समझिए, टाइप ऑफ क्वेश्चनर्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस, सीक्वेंस एंड लेआउट, प्री टेस्टिंग एंड रिवाइज एंड फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चनर। तो ये जो आपको 7 स्टेप है, उसको मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। आपने एक एग्जांपल लिया, फिर मैं वही एग्जांपल लेता हूं। अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय रूरल फार्मर्स। आप एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे एक रिसर्च कर रहे हैं, तो इस रिसर्च में क्या करेंगे, आपको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको पहला क्वेश्चनर में ये देखना है कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ही हो। तो अवेयरनेस अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, अडॉप्शन अबाउट ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, चैलेंज फेस बाय दिस ऑर्गेनिक मेथड। देखिए, तो हमको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ना कि हमें स्मार्टफोन के बारे में, ना कि मेरे को किसी और एरिया के बारे में। तो जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपका टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड ही आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। चूज द टाइप ऑफ क्वेश्चनर्स। जनरली क्वेश्चनर इज 3 टाइप, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर एंड मिक्स्ड। अगर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर का मतलब है फिक्स रिस्पॉन्स, अनस्ट्रक्चर का मतलब है ओपन एंडेड, एंड मिक्स का मतलब दोनों। तो अनस्ट्रक्चर का मतलब, स्ट्रक्चर का मतलब अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास फिक्स रिस्पॉन्स है, अगर ये है, अगर देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे हुआ। अगर मैंने पूछा किसान से कि व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर डू यू यूज, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे एक रिसर्च कर रहा हूं, तो उन्होंने बोला ऑर्गेनिक, केमिकल, बोथ। देखिए स्ट्रक्चर का मतलब मैंने बोला फिक्स रिस्पॉन्स। तो यहां पे 3 फिक्स रिस्पॉन्स आपको दिए गए, आपको इन्हीं में से ही चूज करना है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन डालते हैं तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। हाउ ऑफन डू यू अप्लाई फर्टिलाइजर्स, वीकली, मंथली, ओकेजनली, वो किसी एक ऑप्शन पे चूज करेगा, तो इसे कहते हैं फिक्स रिस्पॉन्स। अनस्ट्रक्चर में आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए जहां पे लिखा हुआ है एग्जांपल में, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऑन योर क्रॉप। आपने किसान से पूछा, एक ओपन एंडेड जिसमें कोई रिस्पॉन्स आपने नहीं रखा है, उसने पूछा कि आपकी क्या एक्सपीरियंस है जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो वो अपना खुद का आंसर बताएगा, बोलेगा कि मुझे ये अच्छा लगता है, मेरी इसकी वजह से मुझे ये होता है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस है। मिक्स दोनों, तो एक रिसर्चर को मेरे अनुसार दोनों स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों क्वेश्चंस इंक्लूड करने चाहिए। ओपन एंडेड भी होना चाहिए, क्लोज एंडेड भी होना चाहिए। तो कई किसान के कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होते हैं, उससे आपको कुछ डेटा अच्छा मिल सकता है, वो ओपन एंडेड से आएगा। क्लोज एंडेड से आपका जो रिस्पॉन्स आप पूछना चाहते हैं वो आएगा। डिसाइड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
close ended as I told you, open ended and Likert scale. देखो, see in questionnaire the researcher has to make this question as per this one. Close ended, open ended. Close ended जहां पे आपके responses होंगे, open ended open question, there is no responses. Likert को एक आपका ऐसा स्केल है जिसपे आप अपना जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसको मेजर करते हैं. जैसे ये Likert स्केल जो अगर देखोगे कि स्केल होता है ऐसे, जिसे स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक जाता है. ये 5 पॉइंट स्केल होता है. आप सभी को स्केल पता होगा, स्केल आपने देखा होगा, स्कूल गए हैं सभी ने देखा होगा स्केल क्या होता है. स्केल क्या करता है? स्केल मेजर के लिए यूज किया जाता है. किसी की हाइट नापनी हो, वेट करने के लिए कुछ और यूज किया जाता है, डिस्टेंस के लिए कुछ और यूज किया जाता है. तो स्केल हम आपके रिसर्च में भी अभी एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्केलिंग. तो स्केल जनरली यूज टू मेजर द डेटा दैट रिस्पोंडेंट्स गिव ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चनर. तो ये Likert स्केल कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप Likert स्केल पे पूछते हैं आप. फॉर एग्जांपल से फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से आपकी आय जो है दुगनी हो जाती है. मैंने ये क्वेश्चन पूछा किसान से और मैंने ये Likert स्केल पे उसको 5 ऑप्शन दे दिए. स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, देन एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री. ये 5 ऑप्शन दे दिए. इस स्केल पे उसने अपना जो रिस्पॉन्स है दिया और वो फिर हम लोग मेजर करते हैं. तो क्लोज एंडेड मैंने बता दिया, ओपन एंडेड बता दिया. Likert स्केल लाइक दिस, सी दिस आस्क रिस्पोंडेंट इंडिकेट द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट. क्या जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उससे वो एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं. ये देखिए, ये कॉमन स्केल है आपकी. यहां पे ये एटीट्यूड, ओपिनियन और सेटिस्फैक्शन मेजर करने में काम आता है. Wording should be very clear, very simple, as I told you in this previous slide. It should be very double barrel question नहीं होना चाहिए. डबल बैरल क्वेश्चन होता है जब आप कोई स्टेटमेंट पूछते हैं तो उसमें 2 वेरिएबल एक साथ किसी भी रिसर्चर को नहीं पूछना चाहिए. जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं. देखिए, डू यू यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड फाइंड देम अफोर्डेबल. देखिए यहां 2 वेरिएबल है. दिस इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2. तो दोनों आप एक ही स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं, ये गलत है. इसे कहते हैं डबल बैरल क्वेश्चंस. आप इसको 2 तरह तोड़ सकते हैं. डू यू यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, वो कुछ बताएगा. डू यू फाइंड देम अफोर्डेबल, इसलिए करते हैं क्योंकि उसको उस रिस्पॉन्स को मेजर करने में आसानी मिल जाए. इफ समवन यूज देम एंड डजंट फाइंड देम अफोर्डेबल, हाउ शुड दे आंसर. तो वो यूज तो कर रहा है बट वो अफोर्डेबल नहीं है, तो क्या आंसर देगा वो. तो उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में रखने चाहिए. सीक्वेंस लेआउट मैंने बताया, फनलिंग टेक्निक वही मैंने बताया. आप ब्रॉड से नैरो जाओगे. ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन ये रहेगा आपका इस सब चीजों में. फिर आपका लास्ट जो 6वां स्टेप है, प्री टेस्टिंग. अब आपने क्वेश्चनर बना लिया और आपको ये देखना है कि मेरा क्वेश्चनर राइट है कि नहीं. अब आप उसको क्या सीधे मार्केट में उतार दोगे? नो. उसके पहले आप प्री टेस्टिंग करेंगे. प्री टेस्टिंग आपने पायलट स्टडी होती है जो क्या करते हैं, उसमें हम एक छोटे से ग्रुप में हम जो भी टूल बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं. जैसे मैंने क्वेश्चनर बनाया तो मैंने एक ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया किसान की और उस ग्रुप को मैंने ये क्वेश्चनर दे दिया और उनसे बोला कि किसान भाइयों आप इस क्वेश्चनर के थ्रू जाइए और देखिए कहां गलती है क्या नहीं है. तो वो कहीं ना कहीं सुधार करके आपको दे देगा और बहुत सारी सुधार होंगी तो आप जो क्वेश्चनर में इंप्रूवमेंट लाएंगे. और जब वो इंप्रूवमेंट आ जाएगी तब वो फाइनल जो क्वेश्चनर है तब वो आपके पूरे सैंपलिंग एरिया में जाएगा. तो पहले हम छोटे लेवल पे टेस्ट करते हैं, फिर उस चीज को बड़े लेवल पे ले जाते हैं. तो उसे कहते हैं प्री टेस्टिंग. प्री टेस्टिंग मतलब लॉन्च से पहले प्री टेस्टिंग. क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन, टाइम टेकन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स. तो ये आपके वो ग्रुप बताएंगे. लास्ट में होता है रिवाइज एंड प्रिपेयर द फाइनल क्वेश्चनर. जब सारी चीज हो जाएगी तो एक बार पूरा चेक करे, उसको रिवाइज करे और क्वेश्चनर को फाइनल करे. तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपके क्वेश्चनर्स और क्वेश्चनर डिजाइनिंग में यूज होते हैं. अगर नेक्स्ट वन अगर आप देखें ये स्लाइड, देयर इज टर्म कॉल्ड शेड्यूल. अब ये सोच में होंगे आप कि ये क्वेश्चनर और शेड्यूल में क्या अंतर है. क्वेश्चनर मैंने बताया इट इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस
that we the researcher frame, marketer frame for the getting this data collected. तो क्या होता है क्वेश्चनर में, कभी कभी क्वेश्चनर आप देखिए ऑफलाइन भी आप कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने ऑनलाइन आपने ईमेल पे किसी के भेज दिया, मैंने उनको बोला कि प्लीज ये क्वेश्चनर भर के दे दे. मैं एक रिसर्चर वहां बैठ के वो क्वेश्चनर नहीं भरवा रहा. अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो उसे क्वेश्चनर कहते हैं. बट शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में एक रिसर्चर, एक मार्केटर वो क्वेश्चनर लेके जाता है और रिस्पोंडेंट के सामने बैठता है और वो ही उनको गाइड करता है कि ये क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चन के बारे में मुझे बताइए. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि क्वेश्चनर में मार्केटर को या रिसर्चर को रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन शेड्यूल में आपको उस मार्केटर को, रिसर्चर को रहने की जरूरत है. जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेटर आस्क एंड क्वेश्चन एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब वो रिस्पोंडेंट जो है खुद ही भरता है. फॉर्मेट रिटर्न है, टिपिकली पेपर बेस्ड. इंटरैक्टिव में मिनिमल है, हाई है. अगर देखेंगे रिस्पॉन्स टाइप क्लोज एंडेड, कैन इंक्लूड क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लिमिटेड, हाई. ये कुछ डिफरेंस हैं जो क्वेश्चनर और शेड्यूल में आप पाएंगे. एक क्वेश्चनर डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है PRA. देखिए हम लोग रूरल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रोच एक ऐसा टूल है जो कि जनरली रूरल कम्युनिटी के लिए यूज किया जाता है. वो क्या है मैं बात करता हूं. इट इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक विच इज यूज टू गैदर इनसाइट फ्रॉम रूरल कम्युनिटी. क्या है कि रूरल कम्युनिटी का उठना बैठना, उनका कस्टम्स, उनकी वैल्यूज, उनका नॉलेज, उनका जो उठने बैठने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट होता है. तो हमें उन तरीकों से ही पहले अपने आप को मेल करना पड़ेगा. तो इट एम्फसाइजेस ऑफ लोकल लैंग्वेज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इन्फॉर्मेलिटी, विजुअल एंड इंटरैक्टिव. क्योंकि देखिए वहां एजुकेशन लेवल भी लो है, तो हर कोई वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा. तो हमें उन्हीं के लैंग्वेज में उनको समझा के अपना डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये समझ में आएगा उनको. की प्रिंसिपल्स पार्टिसिपेशन, रूरल पीपुल आर एक्टिवली इन्वॉल्व नॉट पैसिवली. उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ेगा. फ्लेक्सिबिलिटी, टूल एंड मेथड आर अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से. विजुअल एड्स को बहुत इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी. मैप, डायग्राम, ड्राइंग के माध्यम से भी हम अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स कंडक्ट PRA. मेरा सुझाव यह है कि कोई भी अगर मार्केटर रूरल कम्युनिटी में कभी जाके डेटा कलेक्ट कर रहा है तो वहीं के लोगों को उठा के उनको इन्वॉल्व करे और उनसे ही डेटा कलेक्ट कराने की कोशिश करे. रिस्पेक्ट टू द लोकल लैंग्वेज, ये कुछ चीजें हैं. देखिए यहां पे कॉमन PRA टूल, सोशल मैपिंग. विलेजर ड्रॉ दियर विलेज लेआउट, वही बनाएंगे कि लेआउट क्या है. हाउस होल्ड रिसोर्सेज डिवीजन, रिसोर्सेज मैपिंग लाइक वाटर, फार्वेस्ट, सॉइल, क्या क्या है उनके, वही बता पाएंगे. ट्रांजेक्ट वॉक, अ गाइडेड वॉक थ्रू विलेज, लोकल ऑब्जर्व एंड डिस्कस द इश्यूज. तो PRA का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उन्हीं की कम्युनिटी में रहते हुए हम उन्हीं को स्टडी करें. इसको हम लोग एक रिसर्च में कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च, कि वो लोकल, जिस भी लोकल कम्युनिटी के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं हम उसी के कम्युनिटी के अपने आप को देखते हैं और वहां रह के उनको डेटा कलेक्ट करते हैं. ये हुआ क्वेश्चनर डिजाइनिंग. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टुडे इन दिस लेक्चर आई वांट टू डिस्कस इज दिस मेजरमेंट एंड स्केलिंग. अब मैंने बताया आपने डेटा कलेक्ट किया, क्वेश्चनर बना लिया, डेटा कलेक्ट किया. अब वो डेटा जो कलेक्ट कर लिया है उसको कैसे मेजर करेंगे आप? कोई स्केल तो होना चाहिए, कोई मेजरमेंट तो होना चाहिए. इसके लिए रिसर्च में एक मेजरमेंट और स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है. मेजरमेंट क्या कहता है? इट इज असाइनिंग नंबर्स और लेबल टू द ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने बोला वहां इरिगेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या असर है, तो इरिगेशन सिस्टम को हमने कुछ कोड दिया, कुछ लेबल किया. इसी तरह हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कोड दिया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया, तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट. इसको हम कई तरीके से समझाएंगे. देखिए आप, सपोज यू वांट टू स्टडी लिटरेसी लेवल इन रूरल विलेज. अब लिटरेसी जो है, आप ये जो वर्ड देख रहे हैं, यू हैव टू मेजर इट. अब इसको कैसे मेजर करेंगे आप? आप ये जो लिटरेसी लेवल है ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. अब इसको किस तरह मेजर करोगे? इसको आपको डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको मेजर कर पाओगे, नहीं तो ऐसे आप केवल नहीं मेजर कर पाओगे. अब यू डिफाइन लिटरेसी एज अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट. अब आप कह रहे हैं हम लिटरेसी को ऐसे डिफाइन करते हैं जो व्यक्ति पढ़ना और लिखना जानता है वो लिटरेट है, और जो नहीं जानता वो इलिटरेट है.
अब हमने क्या किया, ये देखिए हमने क्या किया कि जो पढ़ना लिखना जानता है उसको मैंने 1 नंबर दे दिया और जो नहीं जानता उनको 2 नंबर दे दिया। अब ये कहीं ना कहीं डेटा में कन्वर्ट हो गया, अब इसको मेजर करना हमारे लिए आसान हो गया। तो अगर आप ऐसा करते हैं, इसको कहते हैं मेजरमेंट। ये 4 तरीके के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। 4 तरह के मेजरमेंट स्केल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, स्केल। अब देखिए ये अगर चार्ट देखेंगे, टेबल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 स्केल कहता क्या है। नॉमिनल जो है आपको लेबल करेगा, जैसे इफ यू वेदर यू लिव इन अर्बन एरिया, रूरल एरिया, इसमें 2 कैटेगरी है, अर्बन एंड रूरल। अर्बन को आपने 1 दे दिया, रूरल को आपने 2 दे दिया। तो यहां क्या करते हैं, कैटेगरीज यूज नेमिंग और लेबलिंग। यहां केवल नॉमिनल स्केल में हम लोग लेबलिंग करते हैं। ऑर्डिनल स्केल कहता है कि आप वहां लेबलिंग तो करते हैं बट वहां रैंकिंग भी करते हैं। रैंकिंग मतलब अगर मैं किसी किसान भाई से पूछता हूं कि आप अगर ट्रैक्टर खरीदना है और आपके यहां आपको मैं 5 पैरामीटर दे रहा हूं, प्राइस, ब्रांड, अवेलेबिलिटी, तो इन तीनों को आप रैंक करिए। किसको आप पहला नंबर देना चाहेंगे, किसको आप दूसरा नंबर देना चाहेंगे, किसको आप तीसरा नंबर देना चाहेंगे। किसान ने कहा सबसे पहले मेरे लिए प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, फिर मेरे लिए अवेलेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, फिर मेरे लिए ब्रांड। तो उसने क्या किया, रैंक कर दिया। तो अगर रैंकिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऑर्डिनल स्केल यूज कर रहे हैं। और तीसरा होता है एक इंटरवल स्केल। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको लिकर्ट स्केल के बारे में बताया। लिकर्ट स्केल इज 5 पॉइंट स्केल, जिसमें आपका जो न्यूमेरिक स्केल है विच इज इक्वल इंटरवल। 1 और 2 के बीच में जो दूरियां होंगी वो 3 और 4 में भी उतनी दूरियां होंगी। ये आपका इंटरवल स्केल कहता है। और रेशियो स्केल जो सबसे अच्छा है, इसमें आप वेरिएबल भी लेबल करते हैं, ऑर्डर भी देते हैं, इंटरवल स्केल है, लेकिन उसके साथ आपका एक ट्रू जीरो भी है। ट्रू जीरो का मतलब है कि कहीं आपका अगर जीरो है, जैसे मैंने किसी से पूछा आपके पास कितना लैंड है, उसने कहा मेरे पास 0। 0 मतलब कुछ नहीं। तो ये जो रेशियो स्केल है इसमें आप 0 भी ऐड करते हैं। तो जिस स्केल में आप 0 ऐड करते हैं वो रेशियो स्केल हो जाता है। तो ये 4 स्केल, मेजरमेंट स्केल जो है जनरली रिसर्च में यूज किए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेसिस से आप अपना डेटा एनालाइज करते हैं। आप अगर देखेंगे यहां में मैंने लिखा है, डिफरेंशिएट कर दिया है नेम्ड वेरिएबल। यहां केवल लेबलिंग करते हैं, वी आर गोइंग टू लेबल। यहां पे नेम भी रहता है लेकिन ऑर्डर है, रैंकिंग देते हैं हम लोग। यहां हम नेम भी करते हैं, रैंकिंग भी करते हैं, बट एक इंटरवल बना देते हैं जो कि आपका लिकर्ट स्केल है और कई तरह के स्केल है वो। और लेकिन रेशियो में आपके तीनों चीज हैं, लेकिन एक एब्सोल्यूट जीरो भी ऐड हो गया है। ये 4 तरीके के मेजरमेंट स्केल हैं जो आपके मेजर करने में यूज होते हैं। एक मैं स्केलिंग की भी बात करूंगा। अब स्केलिंग मेजरमेंट तो मैंने बता दिया। स्केलिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड असाइनिंग नंबर्स टू द लेबल। अब आपको उसको मेजर करना, आपने स्केल बना दिया, अब उस आपने कोई स्टेटमेंट पूछा और इस रिस्पोंडेंट ने यहां कुछ अपना मार्क दे दिया। तो यहां का कुछ मतलब होगा कि इसने यहां दिया है तो मैं 100 में से कितना नंबर दूं इसको। यहां पे ये रिसर्चर तय करता है, ये रिसर्चर स्केल बनाता है, तो उसको हम स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग जनरली देखिए, फिगर देखें, स्केलिंग कई तरीके के होते हैं, कंपैरेटिव स्केलिंग एंड नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग। दोनों से नाम से समझ जाएंगे। कंपैरेटिव मतलब जहां कंपैरिजन होता है, और नॉन कंपैरेटिव में जहां कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव स्केलिंग में पेयर सैंपल, पेयर कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर और कांस्टेंट सम। पेयर कंपैरिजन में आप क्या करेंगे, आप किसान से पूछेंगे कि ये 2 आपको मैं रख रहा हूं प्रोडक्ट, कौन सा चूज करना चाहेंगे। आपने 2 ऑप्शन दिया और 2 ऑप्शन में से वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या अपने उसको तौलता है और उसको कोई एक ऑप्शन चूज करता है, तो इसे कहते हैं पेयर कंपैरिजन। रैंक ऑर्डर, मैंने रैंक बताया अभी कि आप कोई अगर ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हो तो कौन कौन सी चीजें आप देखते हो और उसका रैंक बताइए मुझे। पहले रैंक में उसने कहा प्राइस, सेकंड में कहा ब्रांड, थर्ड में कहा उसने अवेलेबिलिटी, चौथे में वो कुछ और कह रहा है, 5वें में, तो ये क्या कहेंगे, इसे कहते हैं रैंक ऑर्डर। उसने एक रैंकिंग दे दी। तीसरा होता है कांस्टेंट सम। कांस्टेंट सम क्या होता है, जैसे मैंने किसान को बोल दिया कि आपके पास 100 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स है, और मैंने बोला कि ट्रैक्टर है, आपको ट्रैक्टर खरीदना है, और उसको आपको मैंने 5 पैरामीटर दिए हैं, A B C D E। तो ये जो 100 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं,
ये 100 पॉइंट को इन 5 वेरिएबल को बांटिए। तो इसने बोला कि 100 में से मैं 30 नंबर सी को देता हूं, 40 नंबर मैं डी को देता हूं, 10 नंबर मैं प्राइस को देता हूं, 5 नंबर मैं इसको देता हूं और 4 नंबर मैं ई को देता हूं। तो ये पूरा उसके पास 100 उसके पास पॉइंट्स है और वो 100 पॉइंट्स को वो जितने भी वेरिएबल्स हैं जो रिसर्चर ने पूछा है उसको वो डिवाइड करता है। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट सम। दूसरा जो कैटेगरी होता है वो नॉन कंपैरेटिव है। मैं नॉन कंपैरेटिव में चलता हूं। इसमें आप इसको कहते हैं मोडियक स्केल। इसमें आप हर एक आइटम जो है उसको इंडिपेंडेंटली आप मेजर करते हैं, इसमें कंपैरिजन आप नहीं कर रहे, ठीक है। जनरली ये नॉन कंपैरेटिव स्केल, कंटिन्यूअस स्केलिंग और आइटमाइज में दो तरीके के होते हैं, कंटिन्यूअस, आइटमाइज। एंड आइटमाइज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लिकर्ट्स, सिमेंटिक एंड स्टेपल। कंटिन्यूअस स्केल क्या है? वो एक ऐसा स्केल है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रेट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, हाउ सेटिस्फाई आर यू विद द न्यू गवर्नमेंट इरिगेशन सिस्टम। किसी फार्मर्स ने, रिसर्चर ने पूछा कि कितने सेटिस्फाई हैं। देखिए आपने एक स्केल बना दिया यहां पे और उसने कहीं ना कहीं यहां मार्क किया, मार्क एनीवेयर ऑन द लाइन। अब इसने क्या किया? द फार्मर मार्क द पॉइंट ऑन द बेस ऑफ दिस फीलिंग एंड दिस पॉइंट कैन बी मेजर्ड। अब ये पॉइंट जो है इसको आप 100 में से कहीं 70 मेजर कर रहे हैं। तो ये जो स्केल है आपको क्या काम करता है? ये मेजर करने के काम आता है। दूसरा होता है आइटमाइज। इट इज अ नॉन कंपैरेटिव स्केल इन विच रिस्पॉन्डेंट सिलेक्ट द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्डर कैटेगरी। इसके बेसिकली 3 तरह के होते हैं, मैं एक एक समझाता हूं आपको। लिकर्ट, सिमेंटिक एंड स्टेपल। लिकर्ट जो है जनरली एक 5 पॉइंट स्केल है जो कि स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री की ओर जाता है। अगर ये स्केल देखिएगा, स्ट्रांगली डिसएग्री से ये एग्री हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये आपका स्ट्रांगली एग्री हो गया, ये डिसएग्री हो गया। ये आपका 5 पॉइंट स्केल है जिसे कहते हैं लिकर्ट स्केल। इफ यू सी दिस, न्यू इरिगेशन कैनाल इंप्रूव द फार्मिंग आउटपुट। स्ट्रांगली आपने ये क्वेश्चन दिया और इसके एक स्केल डेवलप कर दिया जो कि आपका स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तरफ जा रहा है, इसे लिकर्ट स्केल कहते हैं। फॉर एग्जांपल से देखिए, मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दिया है। आप एक ग्लोबस है जो कि रिटेल मार्केट है में डील करता है, आप वहां पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कर रहे हैं। आपने कुछ आइटम्स डाले जो कि लिकर्ट स्केल पे आप मेजर कर रहे हैं। तो आपने बोला सेल्समैन एट द शॉपिंग मॉल आर कर्सियस, उनका व्यवहार अच्छा है। आपने ये स्केल दे दिया, इसने मान लीजिए यहां टिक किया, इसने इस क्वेश्चन के लिए मान लीजिए यहां टिक किया, इसके लिए यहां आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर 5 पॉइंट पे स्केल पे मेजर कर रहे हैं वो लिकर्ट स्केल होता है। दूसरा होता है सिमेंटिक स्केल। ये लिकर्ट स्केल की तरह होता है, इसको इन ऑथर ने दिया है और ये लेकिन 7 पॉइंट स्केल है। वो 5 पॉइंट स्केल था, ये 7 पॉइंट स्केल है। आप समझिए, ये देखिए आप, नॉट रिलायबल टू रिलायबल, ये -नेगेटिव टू प्लस नेगेटिव है। तो एक चीज समझने की जरूरत है, अगर हमारा स्केल में 5 पॉइंट स्केल है, 7 पॉइंट स्केल है, 10 पॉइंट स्केल है, जितना हमारा स्केल बड़ा होगा उतनी एक्यूरेसी हमारी अच्छी होगी, क्योंकि रिस्पोंडेंट जो डेटा देगा वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा, उसको आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये सिमेंटिक स्केल नथिंग एल्स, इट इज 7 पॉइंट स्केल। एंड स्टेपल स्केल लास्ट जो होता है वो कुछ नहीं है, वो 10 पॉइंट स्केल पे है जो कि -5 टू +5 विथ नो 0 पॉइंट। अगर आप देखें यहां पे तो नो 0 पॉइंट है। एग्जाम्पल लेके चलिए, रेट योर लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑन द फॉलोइंग ट्रेड। आपने क्या किया? हेल्पफुल, +5 से -5। तो एक रिस्पोंडेंट जो है कहीं भी अगर यहां रिस्पॉन्स देता है तो आप समझ सकते हैं, उसको रेट कर सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का वेटेज कितना है। तो एक लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट्स पे है, एक आपका सिमेंटिक जो है 7 पॉइंट पे बात करता है, एक स्टेपल जो है 10 पॉइंट पे बात करता है। सो फॉर दिस टुडे क्लास where we have discussed regarding designing the questionnaire and how we are going to measure on this any scale is going to be very important, and this should be understood by the marketer. On the basis of this, I have just framed one activity question. You are a marketing researcher in the rural areas to study the product preference. While drafting a questionnaire, what key parameter will you consider to ensure your clear, respectful, relevant questions? And think from the villager perspective and consider the language, lifestyle and cultural context. How will you frame questions? This is
your asked today questions for today lectures. So I hope that you are able to understand how you are going to design this questionnaire and how you are going to measure on this any scales, how you are going to select the scales. Thank you very much for today's lecture.